Okay, dear. Let's start today's topic. So earlier we have discussed. Shall I start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, better. Yes, So sir. today earlier we have discussed the three different institutions or three different institutions are also in class 8 you will study in the form of separation of powers. So in this we'll discuss details about the executive, judiciary and legislature. So beta legislature may be named by different name. ये two legislature mostly we have found in each state. हर state को होती है that is known by the विधान सभा और एमएलए जो बैठते हैं यू आर स्टडी इन क्लास 7 और एक पार्लियामेंट आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन. So legislature means the elected leaders who take the decision in behalf of the people जो उनको represent करते हैं. So today we are going to discuss about the executive first institution. So today we are going to discuss about executive institution. So here we will discuss executive. So in what is the executive? First हम discuss करेंगे कि what is the executive. So executive are the person who maybe take the decision, but they are not supreme. They take decision in behalf of public or peoples. क्योंकि democracy में who is the on first priority public. Public क्या होते हैं बेटा? First priority होती है democracy. So in behalf of public, they take the decision. That is known as the executive. वो executive है. अब executives are two types. Action और decision जो ले सकते हैं those person who can take the action or decision. These are the two types category of executive. One is the political executive or permanent executive. A political executive means the those person are elected for 5 years. जिसमें इलेक्टेड लीडर्स आ जाएंगे जो एमएलए है एमपी है. अब इनमें से उनमें भी टेक द डिसीजन दोज हु आर द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर. So these are the category of political members who can take the decision in behalf of people for a democracy. This category is known as the political executive. Second one, who are the permanent? They are appointed by the government, permanent, and they may be retired after a fixed age period. It will be decided by their state or central government maybe. So these categories are known as the permanent, or these people are work for a long period. Long period means the for till their retirement. ये वहाँ तक work करते हैं. और these are selected for only 5 years. ये elected and not selected. These are elected for only 5 years. Or these are the work for a long period. So this is the main difference between the. यानी one side is the government servant, like आप इसमें एसपी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनको ले सकते हो, are the civil servants. Or another one side is the political leader. So these are the two category who take the decision. कैसे लेंगे? सीधे एग्जाम्पल, ये सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose after 16 November, school will reopen or not. So this decision will be taken by for Rajasthan state by education minister. अब कौन डिसीजन लेंगे बेटा? एजुकेशन मिनिस्टर डिसीजन लेंगे. तो शिक्षा मंत्री तो एजुकेशन मिनिस्टर डिसीजन लेंगे. तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन ज़्यादा पावरफुल? पॉलिटिकल लीडर. एजुकेशन मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि हम 16 नवंबर लेटर ऑन स्कूल विल रीओपन. जस्ट एग्जांपल, he has taken the decision by a education minister to after corona covid-19 school will reopen. So it will be a memorandum or order sent to the permanent members. जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डीईओ, डीओ, ये जो डिसीजन है इट इज कंसर्न विद द डीओ. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द डीओ. ओके. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी. तो such people may be spread the such message to the private government school, government registered school है, सीबीएसई स्कूल है, सबको ये लेटर इशू करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट से. पहले कहाँ से लेटर आएगा? फ्रॉम द लेजिस्लेचर मींस द एजुकेशन मिनिस्टर. एजुकेशन मिनिस्टर सेंड ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आएंगे.
district collector or maybe the DO office send this letter to the private or government registered school, or later on decision will be implemented. Suppose any one school is not following the guideline, so DO or district collector has the power to take the action. So this is the way. Through this permanent and political and permanent executives will be work करेंगे और करते हैं. This is the way or system of working. दोनों मिलके करते हैं. But who is more powerful? Political are more powerful. Why these are the more powerful, बेटा? We'll discuss later on. एक simple बता दूं मैं केवल. Why these are powerful? Because political leaders directly elected by public. और डेमोक्रेसी क्या होती है? By the people, to the people, for the people. यानी for people is comes in first priority in democratic nation. That's why this political leader are more powerful. ये चाहे तो किसी भी DO का ट्रांसफर कर सकते हैं. Political leader चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ट्रांसफर कर सकते हैं. How the district collector and DO will be work, guideline will be provided by the political leader. So political leader are more powerful. If you after election आप देखते हो कि when गवर्नमेंट में भी चेंज, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर और टॉप कैटेगरी के ऑफिसर होते हैं उनके ट्रांसफर हो जाते हैं. तो दिस वे पॉलिटिकल लीडर्स आर मोर पावरफुल. तो दिस इज द सिस्टम ऑफ परमानेंट पॉलिटिकल एंड परमानेंट मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स वर्क. तो डियर, इफ यू एनी डाउट रिलेटेड टू how the political leaders are appointed, elected for fixed period by peoples. Okay, or these permanent members also known as the civil servants, yeah, civil servants or civil services members, or they may be take the decision by proper guideline given by the political leader. So these are the definition. अब हम next topic पढ़ेंगे कि why is the minister या political leader. अब political leader में who can take the decision? सभी MLA decision नहीं ले सकते बेटा. Listen 1 minute. All MLAs can't take the decision. Who can take the executive? Executive का मतलब क्या होता है? Who can take the decision or action? अब action और decision एक ही है. जब कौन action and decision ले सकता है? Executive ले सकता है. तो executive अगर इंडिया तो बेटा able to take the decision or action, तो everyone MLA or executive political leader है. तो everyone can't take the action. Who can take the action? Only minister. बता रहा हूँ. पर एक एमएलए का डिसीजन ले सकता है, कुछ भी नहीं. एमएलए कैन टेक डिसीजन रिलेटेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. वो भी डिसीजन नहीं ले सकता. वो वही फॉलो करेगा दोस गाइडलाइन गिवन बाय सीएम, जो उनके पॉलिटिकल लीडर हैं. तो मिनिस्टर है, सीएम है, कैबिनेट. अब ये तो स्टेट की डिस्कस कर रहा हूं मैं. अब सेंट्रल गवर्नमेंट मींस कैबिनेट मिनिस्टर, independent minister, state minister, all may be take the action. Prime minister. So these are the part of political leader. इनकी बात कर रहा हूँ. So they may be. तो ये these are the minister. और इधर हो गए civil servant. Civil servant. Civil servant means the permanent. मैं break में permanent. Permanent. Okay. These are the permanent member. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई पॉलिटिकल लीडर, व्हाई द मिनिस्टर आर मोर पावरफुल कंपेयर टू द सिविल सर्वेंट्स. कि ये ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल लीडर में भी मिनिस्टर चाहे तो किसी भी सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफर कर सकते हैं. दे मे बी टेक द एक्शन, दे मे बी इशू द चार्जशीट लाइक दिस. अगर दे आर वर्क प्रॉपर्ली वर्क और दे आर डूइंग देयर प्रॉपर सर्विस और नॉट लाइक दिस. बट दे हैव राइट्स. इनको भी राइट्स है कि इफ दे आर डूइंग देयर जॉब वेल मैनर्स, तो दे हैव राइट टू अप्रोच टू द कोर्ट और जुडिशरी. बट ऐसा कभी नहीं होता. यू नो, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई दिस कैटेगरी मींस मिनिस्टर आर मोर पावरफुल कंपेयर टू. सिंपल अगर हम वन वर्ड और वन सेंटेंस में आंसर करें ना कि व्हाई दिस आर पावरफुल, सिंपल आंसर बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक और दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी में क्या पब्लिक फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है. बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, यानी पीपल ही पीपल, ऑल थ्री कैटेगरीज आर कम. दैट्स व्हाई मिनिस्टर्स आर मोर पावरफुल कंपेयर. फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी political leaders are more powerful because
the minister is an elected representative of the people and empower the exercise will the peoples give the authority in behalf of that. यानी पब्लिक ने जो एक्सरसाइज एन एक्सरसाइज करने का पावर दिया है थ्रू द इलेक्टेड, दैट्स व्हाई दे आर मोर पावरफुल. Okay, so this is the today's topic we have discussed. I will, if you have no doubt, so we will discuss about the prime minister and their councils. Next topic है हमारा prime minister and councils. And council. Council means जैसे you know your councils होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल में इसमें कैबिनेट. ओके, तो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हु इज प्राइम मिनिस्टर. कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर, यस, एनीवन? Prime Minister is leader of majority. Leader of majority. Are you hearing my voice or not? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी वॉइस नहीं आती तो कि there is proper audio. Yes, okay. Yes, sir. तो okay. तो प्राइम मिनिस्टर, you know, प्राइम मिनिस्टर is the leader of the majority. अब leader of the majority means what? Those political parties form the government. So prime minister is the leader of the majority. तो प्राइम मिनिस्टर पूरी मेजोरिटी जो होती है उसका लीडर होता है और इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. बिफोर प्रेसिडेंट, उसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. और जो सीएम है, यू नो, सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर. गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं. गवर्नर्स इज द जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं, दे अपॉइंटेड the CM and Prime Minister is appointed by the President. So these are the leader of the majority. Up today we will discuss about the what are the Council of Prime Minister, how the Prime Minister is elected. You know, there is a simple process. There is election held after every 5 years, or when elections होते हैं और MPs means the member of Parliament. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी मेजोरिटी में आता है, दे फॉर्म द गवर्नमेंट. उसका लीडर क्या होता है? जो अपॉइंटेड बाय मेजोरिटी का लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं. सम टाइम मेजोरिटी होते हैं और सम टाइम दे मे बी फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन मींस द मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी. व्हेन अ गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बाय मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट. अब बिहार में इसे लग रहा है मुझे कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी. Those people, those students who have interest about the Bihar election, 10 November result will be disclosed. तो आयो ना तो बीजेपी मुझे लगता है ना तो मेजोरिटी में आएगी नीतीश कुमार, और इट विल बी कोलिशन गवर्नमेंट. और मे बी पॉसिबिलिटी या तो आउट ऑफ 243 सीट है वहां पे, आउट ऑफ 243 सीट मुझे लग रहा है कि 112 सीट बीजेपी के आसपास आ सकती है. बीजेपी प्लस नीतीश कुमार जेडीयू. तो जेडीयू और बीजेपी इतनी सीट ला सकते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ सीट 8 to 10 सीट को ले जाएगा. क्या नाम है उसका? चिराग पासवान. 8 to 10 सीट चिराग पासवान ले जा सकता है. और यू नो तेजस्वी भी अच्छी इमेज है. तेजस्वी और जो लालू कोलिशन है, दे मे बी. तो हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, नो वन इज श्योर. Maybe when the result will be disclosed, so those people who will form the government, they may be formed through the only on the stand on the borders. वो न तो फुल मेजोरिटी से आएंगे क्योंकि बॉर्डर पे स्टैंड रहेंगे. लाइक किसी के पास सपोज अब जैसे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 122 सीट आ रिक्वायर्ड ना, तो सब में भी 125, 118, 130 लाइक दिस सच केस. जो भी होगा विल सी द रिजल्ट. चलो आई एम जस्ट time है, we have time. So today we'll discuss about the ministers.
एंड प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन पार्टीज द कमांड ऑफ मेजोरिटी टू लोकसभा, दिस इज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द in case of no single party or alliance get the majority, तो president appoint the person most likely secure majority support। ये अच्छा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। बेटा दिस आर द नोट्स, ये नोट्स है जो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ये नोट्स क्या होता है कि हमें टीचिंग में हेल्प करते हैं। जैसे मैं पॉइंट देखता हूँ तो एक्सप्लेनेशन मेरे अंदर है पूरा, तो एक्सप्लेनेशन हम उसको इजी गोइंग कर लेते हैं। देयर विल बी सिस्टमैटिक, आपको सिस्टमैटिक मिलता है पूरा। ओके, तो आई विल प्रोवाइड द नोट्स। मैंने भेजे हैं कि आपको नोट्स भेजे, नहीं भेजे बेटा इसके चैप्टर के? नहीं, आई होप। नो सर। चलो टुडे आई विल। नो सर। और नोट्स पर व्हाट जो पॉइंट हम डिस्कस कि प्रेसिडेंट those people who are in majority या और कोलिशन, दोनों आप जानते हो कि मेजोरिटी मतलब कि नंबर जितनी वन पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, 200 सीट फॉर एग्जांपल, मैं स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूं। इट इज कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो नेम आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। टेक द एग्जांपल 200 सीट है किसी भी कंट्री में, तो हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड? 100 above, या we can say in other words 101 seats to form the government। okay, so if any single party able to vote this number 101, single political party को नंबर मिलता है, that is known as the majority, उसको majority। अगर single party form the government, but in case of by help of other party, उस पार्टी को मिले only 90 और by help of other party 101 हो गया by support of other। तो when a government may be formed by more than one political party, one political party हो गई प्लस 1 ये हो गई, तो more than one political party, अब इसमें 1 भी हो सकती है, सॉरी more than one political party means 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, it may be depend on that। So more than one political party when a government may be formed, that is known as the coalition government, गठबंधन, गठबंधन गवर्नमेंट होते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, जो सेंट्रल लेवल पे जाके इस गठबंधन का नेम चेंज हो जाता है। कैसे? अगर सपोज एनी वन पॉलिटिकल पार्टी आर इंटरेस्टेड टू मर्ज विद बीजेपी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ मर्ज करके गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, दैट गवर्नमेंट नोन बाय द एनडीए, उसको हम एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं। बहुत बार हम न्यूज में सुनते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन, यूपीए गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन। तो व्हाट इज द यूपीए एंड व्हाट इज द एनडीए गवर्नमेंट? Sorry, when any one party interested to form with the government with the Congress, यानी कांग्रेस के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज मर्ज होकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, कोलिशन दैट नोन बाय द एनडीए मींस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए ये वाला और नहीं है बेटा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इट इज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी when a BJP form the government with coalition, that is known by the NDA। when a Congress form the government with the help of other supportable parties, so this is known as the UPA। UPA means the United Province Alliance, United Province Alliance, this is the name of the UPA and NDA government। ये UPA और NDA government। अब हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि ये दोनों कंडीशन में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, वन पर्सन बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर जो होगा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ओके, इन सच कंडीशन, इन बोथ कंडीशन, बट समटाइम व्हाट हैपेंस, कभी ऐसा होगा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के नेम लिख के एबीसीडी लिख रहा हूं। इफ देयर आर 4 पॉलिटिकल पार्टी इन कंट्री और देयर आर 500 सीट, total seat for example 500 है, तो 250 seats are required to form the government। one को मिली 125,
125 और टू फॉर्म ए गवर्नमेंट 250 सीट्स आर रिक्वायर्ड 251। अब ऐसा जैसे कभी कंट्री में नहीं आता है, जस्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ इसलिए समझ गया। ए के पास बी के पास सेम सीट्स है यानी दे आर अनेबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। 120 130 110 फिर तो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। Okay, okay, sir. So no one party is able to form the government in this situation. With total number of seats 500. How many seats are required? 50% more than. So 251 seats are required. So in such condition, there are 4 political parties in a nation. Just an example. Or no one able to form the government. So what president will do? President को जो लगेगा कि who is the trustable political party or maybe can form the government जो majority में आ रही है, तो इस तरह सबसे महत्वपूर्ण सीट आ रही है सी गवर्नमेंट। तो president will call the leader of the C political party and offer to form the government। उनको ऑफर दिया जाएगा कि आप आके गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। तो इन सच कंडीशन व्हाट हैपेंस, क्या होता है बेटा, जैसे इनको ऑफर दिया है कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए सी पॉलिटिकल पार्टी और इनको एक फिक्स टाइम पीरियड दिया जाता है फॉर 2 और 3 डेज, इट डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट। तो अगर उनको दिए हैं कि 3 डेज, विद इन द 3 डेज within the 3 days you should be prove your majority in parliament। यानी आपको अपने साथ 251 को प्रूव करना है कि वो आपके साथ है विद इन द 3 डेज विद द फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट होगा यानी वोटिंग होगी या आपको खड़े करने पड़ेंगे कि दीज आर द एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो थ्रू द फ्लोर टेस्ट यू विल बी प्रूव योरसेल्फ विद इन द 3 डेज। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर और नॉट? हेलो, यस सर। आप समझ तो रहे हो? यस सर। कैसा नहीं है, मैं अकेला ही करता जा रहा हूँ। यस सर। ओके, तो समटाइम व्हाट हैपेंस कि 3 डेज में इनको क्या करना है कि प्रूव करना है कि 251 इनके साथ है। अगर दे अनेबल टू प्रूव तो क्या होगा, इनकी गवर्नमेंट नहीं बढ़ेगी बट इट विल बी बिग इंसल्ट, इंसल्ट भी हो जाती है। तो सच टाइप ऑफ कंडीशन और जो एक्सीडेंट हुआ था दिस हैपेंस इनसाइड द दिल्ली। दिल्ली में जब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए तो केजरीवाल बीजेपी आप पार्टी में केजरीवाल एंड बीजेपी नो वन वोट द मेजोरिटी, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। तो न तो वहां कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म की, न केजरीवाल ने की और न बीजेपी ने की, तीनों ने मना कर दिया फॉर्म करने से। देन व्हाट हैपन, आई होप 6 या 7 या 9 मंथ के बाद लेट ऑन वापस क्या हुआ, वहां पे री इलेक्शन हुए, दोबारा इलेक्शन हुए और फिर वापस किसने फॉर्म की गवर्नमेंट, आप पार्टी ने, केजरीवाल ने। तो वहां कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है। अब ये तो हो गया हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, प्रेसिडेंट उनको ऑफर करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पेक्ट है। और कभी कभी हम बोलते ना कि देयर इज द नो मोरल स्कोप फॉर, देयर इज नो मोरल इन पॉलिटिकल पार्टी या फॉर नो मोरल स्कोप इन पॉलिटिकल पार्टी, की मोरल वैल्यूज नहीं होती इन पॉलिटिकल पार्टी। हम बोलते हैं सर, क्यों? सीधे एग्जाम्पल, अब कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है कि जो मेजोरिटी में उसको ऑफर किया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। अब इसको हम एग्जांपल चेंज करके प्रेसिडेंट पे नहीं जाके स्टेट पे आ जाते हैं। तो स्टेट पे आने के बाद कौन ऑफर करेंगे? गवर्नर। स्टेट में गवर्नर होते हैं बेटा जो ऑफर करते हैं फॉर्म करने के लिए, और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। ओके, तो गवर्नर विल बी ऑफर। अब गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिख को अपॉइंट करे।
लेकिन डी इतना चालाक है कि उसको पता है कि आई एम अनेबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 110 है मेरे पास। तो इसने फिर क्या करेगा, सपोज यहाँ पे 110 नहीं आके ये रेशो कर दिया। यस, ये रेशो कर दिया। अब यू नो डी जो है या ए को ले लीजिए, ए सबसे कम सीट लेके है, या डी उसकी भी कैटेगरी इतनी कम है, तो डी क्या है, बड़ा एडवांस है। डी ने सोचा कि वी कांट फॉर्म द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट तो वैसे फॉर्म नहीं करेंगे, डजंट मैटर कि डी प्लस बी, क्यों ना बी को सपोर्ट कर दें, और बी को सपोर्ट करके क्या होगा कि गवर्नमेंट हम बना लेंगे, इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो डी ने यहाँ पे गवर्नमेंट बना दी इसकी जगह। तो अगर कभी ऐसा होता है तो इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि डी को तो पब्लिक ने आपको भाई who will be form the government, गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा बेटा, जिसकी मेजोरिटी को, जिसको मेजोरिटी में किसने भेजा है, पब्लिक ने भेजा है। यानी हमारी डेमोक्रेसी किसको कहती है, पब्लिक को कहती है कि पब्लिक के बिहाफ में हम रूल करते हैं। तो पब्लिक ने तो आपके ऊपर ट्रस्ट सबसे कम जनरेट किया है, यानी पब्लिक ने तो डी पे सबसे कम ट्रस्ट को जनरेट किया ना, और डी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, जिसपे ट्रस्ट नहीं है वही गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, यानी सबसे कम सपोर्ट देना मतलब ट्रस्ट जनरेट करना हो गया। तो सबसे कम ट्रस्ट किया है डी पे, और ये गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा बी के साथ मिलके, तो इट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट हैपेंस इन कर्नाटका, बीजेपी को 2 सीट मिली थी फिर भी वहां गवर्नमेंट बना डाली। तो ऐसे कितने बीजेपी, या तो शायद ये आयोग कर्नाटका में हुआ या केरला में हुआ, किसी एक स्टेट में हुआ था, 2 या 12 सीट मिली थी। तो सच केसेस हैपेंस इन डेमोक्रेसी। तो बहुत बार डेमोक्रेसी में ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस टिल प्राइम मिनिस्टर, और टुमारो विल डिस्कस अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है बेटा, तो हम वो डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फिर व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ जुडिशरी, ये डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। थैंक्स बेटा।